محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں کا جو حصہ پاجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان تو وہی ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر. بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر کی ایم ایل سی ٹی-آر-ایس امیدوار کے کویتا سے ملاقات اور بتایا ان کی جیت کو یقینی اور ان کی پھر سے ضلعی سیاست میں آنے پر کیا خوشی کا اظہار. آرمور کو ہر لحاظ سے ترقی یافتہ بنانے کے لیے رکن اسمبلی جیون ریڈی کوشاں. آرمور میں جاری مختلف ترقی یافتہ کاموں کا انہوں نے جائزہ لیا. حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کے دوسرے دن بھی عوام کا ہجوم. کورونا وبا کے سبب محدود انداز میں عرس شریف کا اہتمام. مسلسل کئی سالوں سے اقلیتی علاقے بدحالی و بلدی کی سہولیات سے محروم. ٹیکس کی ادائیگی پر مسائل حل نہیں ہوئے. اب LRS کی رقم کی ادائیگی پر بھی کیا عوام میں ترقی ہوگی؟ عوام کا سوال. صدر نشین ضلع پریشد ڈی وٹھل راؤ کی چیف منسٹر سے ملاقات. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. رکن اسمبلی شکیل عامر نے کی ایم ایل سی ٹی-آر-ایس امیدوار سابقہ رکن پارلیمنٹ کے کویتا سے ملاقات و دیگر امور پر کیا تبادلہ خیال. بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر کے ہمراہ بودھن بلدی نائب صدر محمد احتشام سہیل تومو پدما شرت ریڈی نے ایم ایل سی ٹی-آر-ایس امیدوار و سابقہ رکن پارلیمنٹ کے کویتا سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر آنے والے انتخابات میں ان کی جیت کو یقینی بتاتے ہوئے رکن اسمبلی شکیل عامر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اسی طرح سابقہ پارلیمنٹ کی جانب سے کی جانے والی خدمات کی بھی ستائش کی. آرمور کو ہر لحاظ سے ترقی یافتہ بنانے کے لیے رکن اسمبلی جیون ریڈی کوشاں. آرمور میں جاری مختلف ترقی یافتہ کاموں کا انہوں نے لیا جائزہ. PUC کمیٹی چیئرمین و آرمور رکن اسمبلی جیون ریڈی نے آج حلقہ اسمبلی کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. اسی طرح ان کے حلقے میں منظور شدہ سدھپا گٹا کے لیے منظور کردہ سڑک کے تعمیری کاموں کا انہوں نے باضابطہ شخصی طور پر پہنچ کر جائزہ لیا اور کانٹریکٹرز کو اس کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی. اس موقع پر ان کے ساتھ ٹی-آر-ایس قائدین و کمیٹی ممبرز موجود تھے. حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ عرس شریف کے دوسرے دن ہی عوام کا ہجوم. کورونا وبا کے سبب محدود انداز میں عرس شریف کا اہتمام. حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ بودھن کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقاریب کا آغاز آج ہوا. اس سال کورونا وبا کے پیش نظر سادگی کے ساتھ منانے کا انتظامیہ اور پولیس کی ہدایت پر سجدہ نشین درگاہ عبد المقتدر نے کمیٹی کے ذمہ داران کے ہمراہ سندر ماری کے رسومات انجام دیے. عرس کے موقع پر پولیس نے درگاہ کے احاطے میں میلہ اور دکانیں لگانے کی اجازت نہیں دی. پرانے شہر میں پولیس کا بندوبست کیا گیا ہے. بودھن کے مختلف محلوں سے نکالے جانے والے سندل جلوس کو بھی مختصر افراد کے ساتھ نکالنے کی شرائط پر اجازت دی گئی ہے. مجھے محبوب خدا محبوب خدا پیسے دینا ہے تو ملا دو مجھے
परिषद डी विठल राव की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। सदनशीन जिले परिषद डी विठल राव ने प्रगति भवन में सदनशीन जिले परिषद डी विठल राव ने जन्मदिन के मौके पर चीफ मिनिस्टर मिस्टर चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात की और इनके जन्मदिन पर आशीर्वाद हासिल किया और चीफ मिनिस्टर मिस्टर चंद्रशेखर राव को वाकिफ करवाते हुए बताया कि जिले परिषद निजामाबाद को मरकजी हुकूमत की जानिब से दीनदयाल पंचायत शक्ति किरण अवार्ड हासिल हुआ है, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने विठल राव को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदनशीन जिले परिषद मिस्टर विठल राव की ये खैर सगारी मुलाकात थी और मुकामी इदारे से ऐन क़ब्ल इनकी ये मुलाकात अहमियत की हामिल है। बातज़ा इन्होंने जिले के वजीर प्रशांत रेड्डी से भी मुलाकात की और आशीर्वाद हासिल किया। सदनशीन जिले परिषद मिस्टर विठल राव के जन्मदिन के मौके पर बड़े पैमाने पर जिले परिषद में भी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। निजामाबाद में ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए कोशा। मुतहदा जिले निजामाबाद की मजालिस मुकामी एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात में बरसर इख्तियार टीआरएस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए कोशा है और मुकामी अवाम मुंतखबा नुमाइंदों को कैंप के लिए मुंतकिल करने की हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है। कोरोना वायरस की बहालत मौजूदा शदीद असरात के तनाजुर में कैंप मुंतकली से कबल अवामी मुंतखबा नुमाइंदों के कोविड मुआयने मुनाकिद किए जा रहे हैं। मुतहदा जिले निजामाबाद में टीआरएस से वाबस्ता मुंतखबा नुमाइंदों खातून मुंतखबा नुमाइंदों के बमशमूल इनके शोहर लड़कों को भी कैंप मुंतकिल करने इनके भी मुआयने किए जा रहे हैं। मंडलवारी असास पर पार्टी कायदीन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनफी रिपोर्ट्स वालों को कैंप मुंतकिल करने बरसर इख्तियार जमात तैयारियों में है। अगर इनमें किसी को मुस्बित पाए जाने और इनकी सेहत का मसला न होने पर इन्हें अलहदा इंतजामात किए जाने की इत्तला है। मजालिस मुकामी एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी तमाम तर तवज्जो मरकूज करते हुए पार्टी के एक भी वोट के इधर उधर न होने देने कोशा है। पार्टी के वोटर्स मुकामी मुंतखबा नुमाइंदों को कैंप मुंतकिल करने हैदराबाद हुदूद में 2 रिसोर्ट को हासिल करने की इत्तला है। कोविड मुस्बित पाए जाने वालों के लिए अलहदा एक होटल में इंतजामात का इल्म हुआ है। मजालिस मुकामी अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को कैंप मुंतकिली करने की जिम्मेदारी हल्का असम्बली सतह पर अरकान असम्बली को सौंपने की इत्तला है। तमाम मुंतखबा नुमाइंदों असम्बली मुस्तखल पर एक मुकाम पर जमा होकर वहां से खुसूसी बस में रवाना होंगे। मुतहदा जिले के तमाम मुकामात पर बरसर इख्तियार पार्टी के अरकान असम्बली है, जिस पर अवामी मुंतखबा नुमाइंदों की सूरत हाल से वाकिफियत हासिल। आज कैंप को रवाना होने पोलिंग के दिन 9 अक्टूबर की सुबह पोलिंग मराकज पहुँचने का मंसूबा किया गया है। किसी दूसरी जमात की तरफ कोई एक भी न जाए, हालात पर मुकम्मल दस्तरस रखी जा रही है। कांग्रेस बीजेपी को मुकम्मल ताकत न होने पर वो अपने वोटर्स को बचाने की कोशिश है। टीआरएस मुतहदा जिले के कायदीन पार्टी उम्मीदवार साबिक एमपी के कविता की इन इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए सरगर्म है। 9 अक्टूबर को सुबह 9 बजे तक 5 बजे शाम रायदही मुनक़िद होगी। 12 अक्टूबर को रायशुमारी के बाद नतीजे का ऐलान अमल में आएगा। एमएलसी भूपत रेड्डी को इस ओहदे से नाअहल करार देने के बाद निजामाबाद मजालिस मुकामी एमएलसी के ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं, जिसमें कांग्रेस से सुभाष रेड्डी, बीजेपी से लक्ष्मी नारायण मुकाबला कर रहे हैं। मजालिस मुकामी एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात में एमपीटीसी, जेडपीटीसी, काउंसलर्स, कॉर्पोरेटर्स को वोट डालने का हक हासिल है, जबकि बाएतिबार ओहदे अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल को भी ये हक हासिल है। जुमला 824 वोटर्स में टीआरएस पार्टी को 75% से ज्यादा अक्सरियत हासिल है। शहर के कई अखलाती इलाके बल्दी बुनियादी सहूलियात से महरूम, अवाम मुकामी कॉर्पोरेटर्स व आला अहदेदारों से बल्दी सहूलियात फराहम करने की अपील। शहर निजामाबाद के कई अखलाती इलाके आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पुख्ता सड़कें, ड्रेन व दीगर सहूलियात न होने से अवाम ने कई बार आला अहदेदारों व दीगर सियासी कायदीन को इस जानिब मुतहरिफ करवाने की कोशिश की, लेकिन अवाम को इन सहूलियात से महरूम रखा गया। आज भी कई अखलाती इलाके इन बुनियादी सहूलियात से महरूम है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इन सहूलियात को फराहम करने के बजाय अवाम पर LRS, BRS जैसे बिल्स के जरिए अवाम में खौफ व दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसकी अवाम को जरूरत नहीं। मुजाहिद नगर की अवाम ने मीडिया के जरिए हुकूमत को LRS व BRS जैसे बिल्स के बजाय बल्दी बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए मुकामी कॉर्पोरेटर्स व आला अहदेदारों से अपील की है। आजकल हो रहे खवातीन पर जराइम के लिए जरूरी है कि खवातीन सेल्फ डिफेंस के टेक्निक को सीखे। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर निखत जरीन का हैदराबाद में मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब।
آج شہر حیدرآباد میں الیکٹرک اسکوٹی کی افتتاحی تقریب میں نظام آباد کی شان بین الاقوامی شہرت یافتہ باکسر نکھت زرین کو مدعو کرتے ہوئے ان کو تہنیت دیتے ہوئے اعزازات کے طور پر کمپنی کی جانب سے اسکوٹی فراہم کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے عوام الناس کو یہ میسج دیا کہ موجودہ دور میں خواتین کو باکسنگ، کراٹے یا اس طرح سے خود کی حفاظتی تدابیر کو اپنانا چاہیے، اور میں نے جب باکسنگ شروع کی تھی تب عوام یہی سوچتی تھی کہ ایک لڑکی اس فیلڈ میں کیا کر سکتی ہے۔ آج ان کی انگنت محنت کے سبب انہوں نے کئی افراد کے ذہن کو تبدیل کیا ہے، لہٰذا انہوں نے خواتین سے اپیل کی کہ وہ باکسنگ، کراٹے یا اس طرح کی حفاظتی تدابیر سیکھنے کے لیے میدان میں آگے آئے۔ Firstly, good afternoon to everyone, and I'm really humbled and honored to receive this scooter from Evolet, and I'm really thankful to them to present me this scooter. And like Prerna ma'am said, لڑکیوں کو ڈیفینس میں دیکھ کے لوگ یہ سوچتے تھے کہ that defense is there is no place for women in defense. So same thing goes for in boxing also. People used to think boxing is only men's game. So then I thought that I'll change this orthodox society's mind. برقی کے زیر التوا یا ماہانہ بلز کی معافی کی تردید۔ تلنگانہ اسٹیٹ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ نے آج سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر گشت ہونے والی ان اطلاعات کی سختی کے ساتھ تردید کر دی ہے کہ برقی بلز معاف کر دیے گئے ہیں، اس لیے زیر التوا یا ماہانہ بلز کی ادائیگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جناب خواجہ عبدالرحمان، سپرنٹینڈنگ انجینئر محکمہ برقی حیدرآباد ساؤتھ سرکل نے آج بتایا کہ سوشل میڈیا پر گشت کی جانے والی اس قسم کی خبروں میں کوئی سچائی نہیں ہے اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ برقی بلز کی معافی کے لیے اس قسم کے کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے۔ انہوں نے برقی صارفین سے اپیل کی کہ وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر گشت کیے جانے والے جھوٹے افواہوں پر یقین نہ کریں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مارچ 2020 تا مئی 2020 بڑی تعداد میں برقی بلز کے بقایا جات موصول ہونے ہیں۔ انہوں نے برقی کے صارفین سے اپیل کی کہ وہ مزید پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے اپنے زیر التوا اور ماہانہ برقی بلز بر وقت ادا کر دیں۔ تلنگانہ ایم سیٹ کورونا پازیٹیو طلباء کو حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت۔ تلنگانہ ایم سیٹ 2020 میں کورونا مثبت ہونے کی وجہ سے شرکت نہ کر پانے والے انجینئرنگ کے طلباء کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کورونا انڈر ٹیکنگ فارم داخل کرے۔ اس کے ساتھ انہیں کورونا پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہی رپورٹس داخل کرنی ہوں گی۔ یہ رپورٹس اور حلف نامہ انہیں 5 اکتوبر تک داخل کرنا ہوگا۔ ٹی ایس ایم سیٹ کے کنوینر پروفیسر اے گوردھن نے کہا کہ کورونا وبا کے پیش نظر ریاستی حکومت نے 17 اگست سے 14 ستمبر کے درمیان کورونا پازیٹیو ہونے والے طلباء کے فائدے کے لیے خصوصی امتحان منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ امتحان ایسے طلباء کے لیے ہوگا جو ایم سیٹ انجینئرنگ میں کورونا کی وجہ سے شرکت نہ کر سکی ہوں۔ کنوینر ایم سیٹ نے کہا کہ اس خصوصی امتحان کی تاریخ، وقت اور خصوصی سیشن وغیرہ کا بعد میں اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے طلباء سے کہا کہ وہ ویب سائٹ پر مشاہدہ کرتے رہیں۔ نظام آباد ضلع میں شادی مبارک کی 2044 درخواستیں زیر التوا۔ شادی مبارک اسکیم کے تحت ضلع نظام آباد کی 3 ڈویژنوں نظام آباد، بودھن، آرمور میں داخل کردہ درخواستیں کثیر تعداد میں زیر التوا ہے۔ سارے ضلع میں 2044 درخواستیں زیر التوا رہنے سے درخواست گزار تشویش زدہ ہے اور جلد از جلد رقم کی جرائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حکومت تلنگانہ نے مسلم اقلیتی طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے سالانہ 1400 کروڑ اور شادی مبارک اسکیم کے لیے کثیر فنڈ مختص کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن شادی مبارک اسکیم کے تحت درخواستوں کے لیے فنڈ کی اجرائی عمل میں نہیں لائی جا رہی ہیں۔ حکومت تلنگانہ نے شادی سے قبل فی درخواست پر 1,116 روپے اجرا کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن ایک بھی درخواست پر شادی سے قبل یہ رقم اجرا نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ شادی ہونے کے کئی ماہ تک بھی درخواست گزاروں کو رقم کی اجرائی عمل میں نہ آنے سے درخواست گزار تحصیل آفس کے چکر لگانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ شادی مبارک اسکیم کے تحت مستحق درخواست گزاروں کو رقومات کی اجرائی میں برسر اختیار ٹی آر ایس یا مجلسی قائدین کی جانب سے درخواست گزاروں کو تعاون درکار ہے۔ تحصیل آفس میں درخواست داخل کی جانے کے بعد عملہ درخواست کی تنقیح کرتا ہے۔ منظور کردہ درخواست پر چیک کی اجرائی عمل میں لائی جاتی ہے، جس پر متعلقہ رکن اسمبلی کی دستخط حاصل کی جاتی ہے، لیکن اراکین اسمبلی کی دستخط میں تاخیر کی وجہ سے بھی سینکڑوں درخواستیں زیر التوا ہے۔ نظام آباد ڈویژن میں فی الوقت 1124 درخواستیں زیر التوا ہے، جن میں تحصیلدار کے دفتر میں 245 درخواستیں ابھی تک تنقیح نہیں کی گئی ہیں۔ رکن اسمبلی کے دستخط کے لیے 2022 درخواستیں زیر التوا ہے۔
48 दरख्वास्तें नामंजूर कर दी गई हैं। बोधन डिवीजन में 666 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा है। तहसीलदार के दफ्तर में 98 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा है। रुकन असम्बली के दस्तखत के लिए 85 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा है। आरडीओ के पास 113 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा है। 2 दरख्वास्तें नामंजूर कर दी गई हैं। आर्मूर डिवीजन में 254 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। तहसीलदार के पास 75 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा है। रुकन असम्बली के दस्तखत के लिए 42 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा है। आरडीओ के पास 18 और 1 दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया गया है। शादी मुबारक स्कीम के तहत दाखिल करदा दरख्वास्तों की तेज रफ्तार 100 का दरख्वास्त गुजार मुतालबा कर रहे हैं। जिस वक्त रियासत तेलंगाना में शादी मुबारक स्कीम का आगाज किया गया था, रियासती वजीर आला KCR ने यह ऐलान किया था कि गरीब वालिदैन को शादी की उमूर के अंजाम दही में सहूलत के लिए शादी से कब्ल ही रकम की जुराई अमल में लाई जाएगी। लेकिन गुजरते वक्त के साथ शादी से कब्ल रकम की जुराई एक ख्वाब बनकर रह गया है। गरीब वालिदैन कर्ज हासिल करते हुए शादी के तमाम उमूर अंजाम दे रहे हैं। शादी के कई माह बाद दरख्वास्त पर रकम की जुराई के बायस ये अखराजात को अदा करना पड़ रहा है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कब्ल अज वक्त शादी मुबारक दरख्वास्तों की मंजूरी व जुराई अमल में लाई जाती है तो हुकूमत की इस स्कीम की मकबूलियत में मजीद इजाफा हो सकता था, लेकिन ताखीर की वजह से ये स्कीम अपनी मकबूलियत होती जा रही है। दरख्वास्त गुजार दफ्तरों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वखलतों के लिए मुख्तस करदा बजट के तहत शादी मुबारक स्कीम के लिए कब्ल अज वक्त फंड इजरा करे ताकि गरीब वालिदैन को सहूलत हासिल हो सके। जिले निजामाबाद के तीनों डिवीजनों निजामाबाद, बोधन, आर्मूर में ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों की जल्द मंजूरी और रकम की इजराई अमल में लाने का गरीब वालिदैन TRS और मजलिसी कायदीन से मुतालबा कर रहे हैं। सरकारी कॉलेज उर्दू मीडियम में दाखिले जारी। 20 अक्टूबर अतकाल दरख्वास्त की आखिरी तारीख। प्रिंसिपल सरकारी जूनियर कॉलेज गर्ल्स उर्दू मीडियम कोटगली निजामाबाद नुसरत जहां ने एलामिया जारी करते हुए बताया कि तालीमी साल बर्राए 2020-21 के लिए MPC, BPC, CEC, HEC और वोकेशनल कोर्सेज में मुफ्त दाखिले दिए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर दाखिलों की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। सरकारी जूनियर कॉलेज गर्ल्स उर्दू मीडियम शहर के कदीम तरीन तालीमी इदारों में शुमार किया जाता है। 35 साल अरसे से ये तालीमी इदारा बेमिसाल खिदमात अंजाम दे रहा है, जहाँ पर कई तुलबात ने मियारी तालीम हासिल करते हुए आज आला ओहदों पर फायज है। कई तुलबात मुख्तलिफ तालीमी इदारों में दर्स व तदरीस की खिदमात अंजाम देते हुए नुमाया मुकाम हासिल किया है। सरकारी जूनियर कॉलेज गर्ल्स उर्दू मीडियम की मियारी व बेशकीमती खासियत को मद्देनजर रखते हुए तुलबात के सरपरस्तों से पुरखुलूस ख्वाहिश की है कि अपनी लड़कियों का यहाँ पर दाखिला कराए और लड़कियों के तालीमी मुस्तकबिल को रोशन करे। रियासती और मरकजी हुकूमत की स्कॉलरशिप की सहूलत दस्तियाब है। स्कॉलरशिप की रकम रास्त तौर पर तुलबात के अकाउंट में जमा कराई जाती है। अलावाजी तुलबात के लिए वोकेशनल कोर्सेज में दाखिले की भी सहूलत है। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल फुलांग में तालीमी साल 2020-21 के इंग्लिश मीडियम के क्लासेस के आगाज के लिए मंजूरी। जिले महतमम तालीमात निजामाबाद दुर्गा प्रसाद की इत्तला के मुताबिक गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बॉयज फुलांग निजामाबाद में तालीमी साल 2020-21 के इंग्लिश मीडियम के क्लासेस के आगाज के लिए मंजूरी दी है। रीजनल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हैदराबाद के अहकामात पर UPS बॉयज फुलांग में इंग्लिश मीडियम की तालीम शुरू करने के लिए अहकामात जारी किया गया, लिहाजा मंडल एजुकेशन ऑफिसर हेड मास्टर इस खुसूस में इक़दामात करते हुए तालीमी सहूलतों को फराहम करने के लिए इक़दामात करें। कोविड मुतासरीन के लिए तेलंगाना मेगा हेल्थ कैंप्स का आगाज। हिंदुस्तान में कोविड की तीसरी लहर का अंदेशा। राब्ता फाउंडेशन से इक़दामात। कोविड के साथ साथ रहने की अवाम को आदत डालनी चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट के बाद सेहतियाब हो जाए तो इसे अपने मुस्तकबिल से मुतालिक लापरवाह नहीं होना चाहिए, बल्कि मुस्तकिल तौर पर एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इन ख्यालात का इजहार राब्ता फाउंडेशन के अहदेदारों मोहतरमा सूबिया जवीरिया, मोहम्मद शजात, मोहम्मद अजहरुद्दीन रियाज, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद मोइजुद्दीन, डॉक्टर अहमद अली ने आज यहाँ मीडिया पल्स ऑडिटोरियम में किया। राब्ता फाउंडेशन जो गुज़िश्ता 6 महीनों से कोविड से मुतासिरा मरीजों को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करते रहे, दिसंबर तक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मेगा हेल्थ कैंप मुनज़्ज़म करेंगे। पहला कैंप मोइनपुरा फतेह दरवाजे में 4 अक्टूबर को मुनक़िद होगा, जिसमें कोविड से मुतालिक शोर बेदार किया जाएगा, सीना शेष की तशखीस
की जाएगी और खून के एहतियात का एहतमाम किया जाएगा। हैदराबाद में 18, 25 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 और 23 नवंबर, 13 और 20 दिसंबर तक मस्जिद कैंप्स होंगे। इसके अलावा आदिलाबाद, विकाराबाद, जहीराबाद, वरंगल, महबूब नगर, खम्मम, करीमनगर और परगी में मुख्तलिफ तारीख में कैंप्स का एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर इन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में कोविड-19 की तीसरी लहर का अंदेशा है। कोविड स्पेशलिस्ट जनाब मोहम्मद शजात ने कहा कि कोरोना से मुतासिर हो या ना हो, कम से कम 1.5 बरस तक मास्क चेहरे पर लगाना जरूरी है। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो राब्ते की खिदमत से इस्तेफादा करे। ये टीम हम वक्त इनकी खिदमत के लिए तैयार रहेगी। इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-123-9729 पर रब्त करें। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर तेलंगाना मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह जो 13 तारीख को गुज़िश्ता महीने को आज़म फंक्शन हॉल मुगलपुरे में हुआ था, फिर एक मरतबा कन्वीनर सोबिया जुवेरिया की निगरानी और हिदायत पर आज मोइनपुरा फतेह दरवाजे में इबादुल्लाह फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम राब्ता फाउंडेशन ने यहाँ पर जो है मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें तकरीबन 140 लोगों से ज़्यादा लोगों ने इस्तेफादा हासिल किया और मुख्तलिफ वबाई अमराज जैसे कोविड का जो है कोरोना टेस्ट वगैरह जो कराया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी, उसके लिए गाइडेंस लेक्चर भी दिया गया और गायनिक पेशेंट्स को देखा गया, पल्मोनोलॉजी के पेशेंट्स को देखा गया, जनरल सर्जन ने जनरल जो है मरीजों को देखा और फिजियोथेरेपी के लिए खास तौर से डॉक्टर हारून भी आए थे, उन्होंने देखा और इबादुल्लाह फाउंडेशन ने यहाँ पर मुफ्त में दवाएं भी सरबराह की हैं। उम्रे के लिए 1.8 लाख इजाजतनामे जारी। सऊदी वज़ारत हज व उम्रे ने कहा कि 1,08,000 से ज्यादा उम्रे इजाजतनामे जारी कर दिए गए। 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक एतमन्ना ऐप के जरिए इजाजतनामे जारी किए गए हैं। वज़ारत ने आदाद-ओ-शुमार के हवाले से कहा है कि 42,873 सऊदी शहरियों और 65,128 गैर मुल्कियों को इजाजतनामों का इजरा किया गया है। वज़ारत हज ने मज़ीद कहा कि एतमन्ना ऐप शुरू होते ही इंदराज करवाने वालों की तादाद 16,000 हो गई थी, जबकि एक हफ्ते के अंदर 3,10,000 सऊदी शहरियों और मुक़ीम गैर मुल्कियों ने इंदराज करवा लिया। इनमें से 2,55,000 असल है और 85,000 अहल वयाल है। तेलंगाना में मानसून मज़ीद 2 हफ्ते रहेगा। जुनूब मगरिबी मानसून का तेलंगाना में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक इख्तिताम मुतवक्किल है। वाज़ेह है कि जारी साल मानसून में इजाफी बारिश हुई है। महकमे मौसमियात के बमौजिब रियासत में मानसून अभी मौजूद है और इसके इख्तिताम के लिए मज़ीद 2 हफ्ते दरकार हो सकते हैं। ताहम मानसून की शिद्दत हैदराबाद और दूसरे अजला में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान कम हो गए हैं। दूसरी जानिब शहर में दर्ज हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। हफ्ते को आला तरीन दर्ज हरारत 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2 डिग्री ज्यादा है। अलावाजी जुमा की रात को अकल तरीन दर्ज हरारत 24.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अजीम तरीन दर्ज हरारत 35.7 डिग्री सेल्सियस मुशीराबाद में रिकॉर्ड किया गया, जबकि अकल तरीन 21.4 डिग्री सेल्सियस माचा बोलारम में रिकॉर्ड किया गया। मौसमी पेशकयासी में इम्कान जाहिर किया गया है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान बेशतर मुकामात पर मौसम खुश्क ही रहेगा और 1 या 2 मुकामात हल्की सी औसत बारिश या गरज चमक हो सकती है। तेलंगाना के डिग्री कॉलेजेस में 2 लाख से ज़ायद निशिस्तें मखलूआ। दाखिलों के दूसरे मरहले का इख्तिताम। तीसरे मरहले के दाखिलों की 5 अक्टूबर तक तकमील। तेलंगाना के डिग्री कॉलेजेस में दाखिलों के सिलसिले में तलबा की जानिब से अदम दिलचस्पी का मुजाहरा देखने को मिला है, जिसके नतीजे में 2.4 लाख निशिस्त दूसरे मरहले के अलॉटमेंट के बाद मखलूआ पाई गई है। स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के मुताबिक डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना दोस्त के तहत 65,719 उम्मीदवारों को निशिस्तें अलॉट की गई हैं। अलॉटमेंट का दूसरा मरहला मुकम्मल हो चुका है। दाखिलों के कन्वीनर और काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के नायब सदर नशीन प्रोफेसर आर लिम्बाद्री और कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन नवीन मित्तल ने बताया कि जुमला 41,159 उम्मीदवारों ने दूसरे मरहले में निशिस्तों के लिए अपने नाम रजिस्टर करवाए। 80,872 उम्मीदवारों को वेब ऑप्शन दिया गया था। इनमें से 65,719 उम्मीदवारों को दूसरे मरहले में निशिस्तें अलॉट हुई है। पहले मरहले में 1,07,645 उम्मीदवारों ने अपनी निशिस्तें महफूज की थी। दूसरे मरहले में 32,601 यानी 54% तलबा और 27,938 यानी 46% तलबात को निशिस्तें अलॉट हुई है। जारिया तालीमी साल 986 डिग्री कॉलेजेस में 4,09,450 निशिस्तें दाखिलों के लिए वेबसाइट पर पेश की गई। 2 मरहलों के बाद 2,41,266 निशिस्तें
अभी भी मखलुआ है। यूनिवर्सिटी के 9 कॉलेजेस में दूसरे मरहले के बाद 4018 नशिस्तों में 124 मखलुआ है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में 69,660 नशिस्तों के मुंजमिला 26,042 नशिस्तें 123 कॉलेजेस में मखलुआ है। रियासत में 41 खानगी इमदादी कॉलेजेस है जिनमें नशिस्तों की तादाद 16,365 है, जिनमें से 5,726 नशिस्तें मखलुआ है। 812 खानगी गैर इमदादी कॉलेजेस की 2,937 नशिस्तें हुरूज मखलुआ है, जबकि जुमला नशिस्तों की तादाद 31,09,275 है। रियासत की वाहिद रेलवे डिग्री कॉलेज की तमाम 132 नशिस्तें पूरी हो चुकी है। ऐसे तलबा जिन्होंने 6 अक्टूबर तक रिपोर्ट नहीं की, इनकी नशिस्तें मनसूख कर दी जाएगी। तलबा को 10 से 15 अक्टूबर के दरमियान अपने अलाट करदा कॉलेजेस को रिपोर्ट करना होगा, बसूरत दीगर वो नशिस्तों से महरूम हो जाएंगे। तीसरे मरहले के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है और 5 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन की सहूलत रहेगी। 6 अक्टूबर को उम्मीदवार अपने वेब ऑप्शन दे सकते हैं। तेलंगाना में 1718 नए कोरोना केस, 8 अमवात। तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव केसों में इजाफा जारी है क्योंकि रियासत में 1718 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद रियासत में केसों की तादाद बढ़कर 1,97,327 हो गए हैं। रियासत में मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,153 हो गए हैं क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 18 अमवात हुई है। महकमे सेहत के बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.58% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर अमवात की शरह 1.6% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2002 मरीज रूबे सेहत हुए, जिसके बाद रियासत में सेहतियाब होने वालों की तादाद बढ़कर 1,67,846 हो गई है। जुमेरात व जुम्मा को जुमला 49,084 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 994 की रिपोर्ट्स का इंतजार है, जबकि जुमला 31,53,626 नमूनों की जांच रियासत में की गई। रियासत में 28,328 एक्टिव केस हैं। उपल के इलाके में स्काई वॉक की तामीर को मंजूरी। हैदराबाद में अपनी नोयत की मुनफरिद तामीर, 36 करोड़ के अखराजात। हैदराबाद में दुर्गम चेरू के करीब केबल ब्रिज की तामीर के बाद अवाम इस तामीरी शाहकार से लुत्फानंदोज हो रही हैं, तो दूसरी तरफ हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA को उपल में स्काई वॉक की तामीर के लिए रियासती हुकूमत से मंजूरी हासिल हुई है। HMDA ने स्काई वॉक की तामीर के सिलसिले में टेंडर्स तलब किए हैं और कामों की तकमील के लिए एक एजेंसी का इंतखाब किया गया। हैदराबाद में अपनी नोयत का ये पहली तामीर होगी। 660 मीटर्स पर मुहित स्काई वॉक अपनी चारों जानिब मुख्तलिफ हिस्सों से मरबूत रहेगा। एक तरफ वो मेट्रो स्टेशन से मुंसलिक रहेगा। तौक़े है कि तामीरी काम 1 साल में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। स्काई वॉक में एलिवेटर, स्केलेटर्स के अलावा जनकशन को मरबूत करने की असली सहूलत रहेगी। ओहदेदारों ने बताया कि स्काई वॉक रुआयती नोयत से हटकर रहेगा और पैदल राहगीरों को मुख्तलिफ सिमतों में जाने की सहूलत रहेगी। 36.50 करोड़ से प्रोजेक्ट की तकमील 2 मरहलों में की जाएगी और तामीरी काम का बहुत जल्द आगाज होगा। पहले मरहले में स्काई वॉक, लिफ्ट और स्केलेटर्स के अलावा फायर सेफ्टी के काम मुकम्मल किए जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में छत की तामीर, तिजारती इलाकों की निशानदही और दीगर कामों की तकमील होगी। हुकूमत ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में इसी तरह के प्रोजेक्ट का मंसूबा रखती है। तेलंगाना अखिलती अकामती स्कूल मोनपल्ली में तलबा के लिए महदूद नशिस्तों पर दाखिले जारी। बी राजेंद्र, प्रिंसिपल तेलंगाना अकामती स्कूल बॉयज 2 मोनपल्ली निजामाबाद ने बताया कि टेमरेज बॉयज 2 मोनपल्ली निजामाबाद में जमात पंजुमता हश्तुम अखिलती तलबा के लिए महदूद नशिस्तों पर दाखिले जारी है। औलिया तलबा से दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों को इस टेमरेज बॉयज 2 मोनपल्ली निजामाबाद में दाखिला दिलवा कर इस मौके का फायदा उठाए। इस इदारे में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम करदा सहूलतों में ताम व क़याम का मुफ्त नज़्म रखा गया। टेमरेज सोसाइटी की जानिब से तमाम तलबा को मुफ्त किताबें, मुफ्त यूनिफॉर्म, मुफ्त जूते, बिस्तर और सेहतमंद तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा और तजुर्बेकार असातिज़ा की निगरानी में शामिल है। कोविड वबा के ज़ेर असर स्कूल में तलबा के लिए असातिज़ा के जरिए तमाम तलबा को रोजाना ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पिछले 2 माह से तालीम जारी है, जिसमें मज़ामिन के अलावा तलबा को दीनी तालीम, अरबी और फिजिकल हेल्थ के क्लासेस भी दिए जा रहे हैं। ज़िले निजामाबाद के अवामुल नास से अपील है कि वो इस सुनहरे मौके से फायदा उठाते हुए हमारा इदारा टेमरेज बॉयज 2 मोनपल्ली निजामाबाद में जमात पंचुमता 8वीं जमात में दाखिला लेकर अपने नौनिहालों की तालीम को आगे बढ़ाए। दाखिले के लिए टेमरेज बॉयज 2 मोनपल्ली निजामाबाद पर रब्त पैदा करें। कल IPL के 16वें मैच में दिल्ली ने कोलकाता को 18 रन से हराया। आज भी 2 मैच होंगे, जिसका पहला मैच हैदराबाद और मुंबई के दरमियान खेला गया और दूसरा मैच पंजाब और चेन्नई के दरमियान जारी।
कल आईपीएल के 2 मैच खेले गए, जिसमें पहले मैच में बेंगलुरु ने राजस्थान को 8 विकेट से हराया और दूसरा मैच दिल्ली और कोलकाता के दरमियान शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें कोलकाता टीम ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया। पहले इनिंग में बैटिंग करते हुए दिल्ली टीम ने 229 का बड़ा टारगेट दिया, जिस पर दूसरी इनिंग में कोलकाता की टीम 210 रन बना सकी। इस मैच को दिल्ली ने 18 रन से जीत लिया और पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर अपनी जगह बनाए हुए है। कल की तरह आज भी 2 मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच मुंबई और हैदराबाद के दरमियान खेला गया और दूसरा मैच चेन्नई और पंजाब के दरमियान खेला जा रहा है। कॉर्पोरेट कॉलेजों में इंटर में दाखिले अखिलती उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब। डीएससी डीओ प्रवीण ने अपने एक एलामिये में जिले से ताल्लुक़ रखने वाले एससी, एसटी, बीसी माइनॉरिटी उम्मीदवारों से कॉर्पोरेट कॉलेज में इंटरमीडिएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। साल 2020-21 तालीमी साल के इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट कॉलेज में दाखिले के लिए सरकारी स्कूल में एसएससी कामयाब ऐसे तलबा जिन्होंने 7 GPA निशानात हासिल किए हों अहल होंगे। इनके वालिदैन की सालाना आमदनी शहरी सतह पर 2 लाख और दही सतह पर 1.5 लाख रुपये होनी चाहिए। ऑनलाइन दरख्वास्तें www.telanganaepass.cgggovernment.in पर 17 अक्टूबर से कब्ल दाखिल करना होगा। इन्होंने इस सुनहरे मौके से इस्तेफादे की ख्वाहिश की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खी पर। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की एमएलसी टीआरएस उम्मीदवार के कविता से मुलाकात और बताया इनकी जीत को यकीनी और इनकी फिर से जिले सियासत में आने पर किया खुशी का इजहार। आरमूर को हर लिहाज से तरक्की याफ्ता बनाने के लिए रुकन असम्बली जीवन रेड्डी कोशा आरमूर में जारी मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता कामों का इन्होंने जायजा लिया। हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के दूसरे दिन भी अवाम का हुजूम, कोरोना वबा के सबब महदूद अंदाज में उर्स शरीफ का एहतमाम। मुसलसल कई सालों से अखलती इलाके बदहाली व बल्दी की सहूलियात से महरूम, टैक्स की अदायगी पर मसाइल हल नहीं हुए। अब LRS की रकम की अदायगी पर भी क्या अवाम में तरक्की होगी? अवाम का सवाल। सदर नशीन जिले परिषद डी विठल राव की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।